Let's improve English. आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में भी हमेशा की तरह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने वाली है। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको फ्रेजेस और वोकैबुलरी बताऊंगा, आपके बहुत काम की रहेगी। घर के सारे खर्चों के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। अगर ऐसा कहना है तो हम कह सकते हैं आई कैनॉट अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस। आई कैनॉट अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाबदेही होना, रिस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज़ के बारे में उत्तरदायी होना। आई कैनॉट अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस, यानी जो भी एक्सपेंसेस हैं घर के, उन सब के लिए मैं अकाउंट नहीं करता हूँ। आई कैनॉट अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस, यानी कि मैं सबका कारण नहीं बता सकता हूँ कि खर्चे क्यों होते हैं। एक्चुअली में आप में से ही किसी ने मुझसे पूछा था कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आ गया हूँ कुछ सेंटेंसेस में इसको यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल, 30% बिजली तो ये एसी खा जाता है। इसे हम कह सकते हैं दिस एसी अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ आवर टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यानी कि ये एसी ही जवाबदेह है 30% इलेक्ट्रिसिटी का। तुम जो करते हो उसके जवाबदेह तुम ही हो। यू मस्ट अकाउंट फॉर एवरीथिंग यू डू। You must account for everything you do. That means it is your responsibility to tell us the reason behind all the things that you do. You must account for everything you do. You are responsible. It is your duty to answer. I hope you have understood this phrase very well. Now in the same way we have another phrase which is on account of. Now let's see how we can use that phrase also. मैं खराब मौसम की वजह से लेट हुआ। I got late on account of the bad weather. I got late because of the bad weather. So instead of because of, we can also use on account of. I got late on account of the bad weather. So on account is being used here in the place of because of. Likewise, मैं उससे बात नहीं करता उसके रूखे व्यवहार की वजह से। Why don't I talk to him? I don't talk to him on account of his rude behavior. Because of his rude behavior, he behaves really rudely and I don't talk to him because of this reason. I don't talk to him on account of his rude behavior. So on account of simply means because of some reason. You do not do something because of some reason, on account of something. I hope you have understood these phrases very well and you will be confidently using these phrases in your conversations. ज़्यादातर लोग उसकी ही तरफ हैं। A majority of the people are in his favor. If someone is in your favor, that means he or she is on your side and with you. A majority of the people, that means a larger group of people are in his favor. So there are many people and more than half of the people are with him. So a majority of the people are in his favor. इस पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है। इस पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है। So in this sense also, we can use majority in this sense also. This party has won a majority. तुम अब बड़े हो गए हो, बालिग हो गए हो. So it can also mean your age. You have reached your majority now. You have reached your majority now. That means you have become an adult and now you have become mature. You have reached your majority now. So majority is the age when you become responsible for your actions, when you are no longer a child. Friends, the person who asked me to use this word in my video also asked to make a sentence using majorities. That means the plural form of majority. So when you make the plural of this noun, it becomes majorities. Like in this example, the majorities from the two cities are against this new rule. So ज़्यादातर लोग इस न्यू रूल के खिलाफ हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी बन गया मेजॉरिटीज़, बिकॉज ये जो मेजॉरिटीज़ हैं ये दो सिटीज़ की हैं, द टू सिटीज़, यानी एक शहर में से भी ज़्यादातर लोग आए और दूसरे शहर में से भी ज़्यादातर लोग आए, यानी वो दो मेजॉरिटीज़ बन गई। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन मेजॉरिटी विच इज़ majorities. The majorities from the two cities are against this new rule. Now someone asked me what the difference between a few and few is. So let's see. A few का मतलब होता है थोड़े से, when we are positive, जब हम थोड़े से खुश हैं, और सिर्फ few कहते हैं इसका मतलब ना के बराबर. Let's understand with examples. A few apples are sweet. That means यहाँ पर मैं खुश हूँ, चलो जितने भी एप्पल्स मैंने खरीदे उनमें से कुछ एप्पल्स तो स्वीट हैं। अब अगर मैं कहूँ
फ्यू एप्पल्स आर स्वीट, इसका मतलब यहाँ पर मैं सैड हूँ। फ्यू एप्पल्स का मतलब अब मैं नेगेटिव हो रहा हूँ कि बहुत कम एप्पल्स ऐसे हैं जो स्वीट है, बहुत ही कम स्वीट हैं। फ्यू एप्पल्स, सो अगर बिना ए के फ्यू का यूज किया जाए इसका मतलब बहुत ही कम एप्पल स्वीट हैं एंड दिस सिचुएशन इज मेकिंग यू सैड। अ फ्यू पीपल आर इन माई फेवर, यानी चलो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ लोग हैं जो मेरी तरफ है, मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ फ्यू पीपल आर इन माई फेवर, इसका मतलब कुछ ही लोग हैं जो मेरी साइड पर हैं, तो यहाँ पर आप खुश नहीं हैं, सैड हैं। फ्यू पीपल यानी बहुत ही कम लोग हैं, ना के बराबर लोग हैं जो मेरी तरफ हैं। क्या तुम उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हो, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं Aren't you praising her too much? Aren't you praising her too much? मैं हर वक्त उसके नखरे नहीं झेल सकता, इसे कह सकते हैं I can't bear her tantrums all the time. I can't bear her tantrums. Bear her tantrums means उसके नखरे झेलना, तो हर वक्त मैं उसके नखरे नहीं झेल सकता। जैसे कि मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं किसी के साथ, तब आप कहते हैं हार मान ली कि नहीं मानी, आप कह सकते हैं डू यू गिव इन, डू यू गिव इन। सो गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। क्या तुम हार मानते हो, हार मानी? ठीक है, मैं हार मानता हूं। ऑल राइट, आई गिव इन, इस तरह आप कह सकते हैं। जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, आखिर में मुझे उसके सामने हार माननी पड़ी। इवेंचुअली आई हैड टू गिव इन टू हिम। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब फाइनली, एट लास्ट, आई हैड टू गिव इन टू हिम, यानी मुझे उसके सामने हार माननी पड़ी, उसी का कहा मानना पड़ा। उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा, इसे कह सकते हैं आई हैड टू गिव इन टू हिज स्टबर्ननेस। ध्यान रखना है, यहाँ पर गिव इन के बाद आपको प्रेपोजिशन टू का यूज करना है। गिव इन टू समथिंग का मतलब होता है उसके आगे हार मान जाना। आई हैड टू गिव इन टू हिज स्टबर्ननेस। स्टबर्ननेस का मतलब उसकी जो जिद थी उसके आगे मुझे हार माननी पड़ी, मुझे झुकना पड़ा। मैं किसी के लिए सरदर्द नहीं बनना चाहता। सरदर्द का मतलब मैं किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ न्यूसेंस टू एनीवन। न्यूसेंस का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम, कोई हेडेक, जो हम कहते हैं ना कि सर दर्द बन गया है वो मेरे लिए, आप कह सकते हैं आई डोंट वांट टू बी अ न्यूसेंस टू एनीवन। मैं किसी के लिए भी न्यूसेंस नहीं बनना चाहता हूँ। दूसरों के लिए सरदर्द बनना बंद करो। स्टॉप मेकिंग अ न्यूसेंस ऑफ योरसेल्फ। स्टॉप मेकिंग अ न्यूसेंस ऑफ योरसेल्फ। सो न्यूसेंस का मतलब होता है सरदर्द, यानी कि प्रॉब्लम, फालतू की डिस्ट्रैक्शन, कष्ट, दुख, प्रॉब्लम। सुबह जल्दी उठने से बहुत चिढ़ होती है, इस तरह भी इस वर्ड का यूज किया जा सकता है। इट्स अ न्यूसेंस हैविंग टू गेट अप अर्ली। सो यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाते वक्त न्यूसेंस लगाकर हैविंग टू और उसके बाद आप वर्ब लगा सकते हैं जब आप कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत कष्टदायी है, बहुत अच्छा नहीं लगता आपको वो करने में। इट्स अ न्यूसेंस हैविंग टू गेट अप अर्ली, यानी जल्दी उठने में बड़ी चिढ़ होती है मुझे, क्यों जल्दी उठना पड़ता है, इस तरह से आप कहना चाहते हैं। जैसे इट्स अ न्यूसेंस हैविंग टू वेट फॉर हर, उसके लिए बार बार इंतजार करना न्यूसेंस है, मतलब मुझे परेशान करती है ये बात। इट्स अ न्यूसेंस हैविंग टू डील विद सच पीपल, ऐसे लोगों से निपटना पड़ता है, बहुत न्यूसेंस है ये, बहुत चिढ़ होती है, सरदर्द बन जाते हैं लोग। तो इसका मतलब न्यूसेंस को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तुम इतने मासूम बनने का नाटक क्यों करते हो? Why do you pretend to be so innocent? Why do you pretend to be so innocent? Innocent का मतलब होता है मासूम। वैसे तो जो गिल्टलेस होता है, जिसने कोई गलती नहीं की, उसको हम कहते हैं कि he is innocent और she is innocent. But innocent also means naive or somebody who is not so clever. He is innocent and he is easy to be fooled. Why do you pretend to be so innocent? उसने आखिर मुझ पे तरस खा के छुट्टी दे ही दी। अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं कि तरस खा के, हम कह सकते हैं he finally relented and let me take a day off. Take a day off. Taking a day means एक दिन की छुट्टी लेना। He finally यानी उसने आखिरकार, relented उसने रिलेंट किया। रिलेंट करने का मतलब होता है किसी चीज की हामी भर लेना। पहले आप मना कर रहे थे, पहले आप अपोज कर रहे थे, लेकिन अब आप मान गए, यानी आपने रिलेंट किया। Let's see more examples. आखिर में वो नरम पड़ा और मुझे माफ कर दिया। वो नरम पड़ा। At last he relented and forgave me. उसने रिलेंट किया यानी वो नरम पड़ गया। He relented and forgave me और मुझे माफ कर दिया। Forgive is the second form of forgive. यानी relent का मतलब होता है तरस खाना, नरम पड़ जाना। पहले वो जिद कर रहे थे लेकिन बाद में मान गए। कहना है वो मुझे भरोसे के लायक लगा, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं He seemed trustworthy to me. He seemed trustworthy to me. ट्रस्टवर्दी का मतलब भरोसे के लायक, और सीम का मतलब लगना या फिर प्रतीत होना होता है। He seemed trustworthy to me, यानी मुझे वो भरोसे के लायक लगा।
फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को लगातार इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं डे बाय डे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के वीडियो लेसन्स इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।